have Dr. Saeed Alam with us. Can we just, sir, can we just check your audio? डॉक्टर रविंदर अपना ऑडियो एक बार ऑन कर लीजिए सईद भाई. डॉक्टर सईद, हाँ ऑडियो एक बार ऑन कर लीजिए. जी so जी we can जी अब मेरी आवाज आ रही होगी आपको. जी जी बिल्कुल. एंड कैन यू हियर अस? यस 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 एब्सोल्युटली क्लियरली. Okay, sir. Thank you so much. Thank you for being with us and taking time out for us. So, Ravinder, we can just, I'll just introduce sir. I'll start. And then we can just have the clippings, the pictures. Please start, ma'am. Okay. A very warm welcome to all the participants here. It gives me immense pleasure that अभी इसके पहले हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का लेक्चर था. And after that wonderful lecture, we are moving on to the second lecture, second session and second lecture of the day. On behalf of ARSD College in collaboration with Ramanujan College, on behalf of our honorable principal, Shri Gyantosh, Professor Gyantosh Kumar Jha sir, our IQAC in charge, Professor Vinita Tuli, our team, and the entire team of this refresher course, I feel elated and very happy to welcome Dr. Saeed Alam to deliver his lecture to this 12th day second session, to this 2 weeks online interdisciplinary refresher course. The topic of this refresher course that we've been having has been holistic empowerment for stress management, a multidisciplinary approach integrating literature, arts, social sciences, and medicine. It gives me immense pleasure to welcome Dr. Saeed Alam. Dr. Saeed Alam is going to talk. When I just spoke to him, he's a renowned theater personality and a man of wonderful work, body of work. And when I told him the topic, and then he said, I would love to talk on the topic theater as a stress buster for academics. It gives me immense pleasure also to welcome Sir and introduce Sir to all of you, our dear participants here. Dr. Saeed Alam is from a small town in the northern India of Uttar Pradesh. He was educated and he got his education from the renowned university, Aligarh Muslim University. Sir has attained his doctorate in political science, international politics, and he has had his interest in academics also. Sir has been a man of varied interest. He was earlier a university teacher and a journalist too, before taking up his passion, theatre, as a profession in 1994. Ever since, he has written, directed, and acted in more than 1,500 shows of about 55 stage plays to critical acclaim and appreciative audiences. Ghalib in New Delhi, comedy. Akbar the Great Nahi Rahe, comedy. Maulana Azad, K.L. Sehgal, the musical. Ghalib, Cut Cut Cut, comedy. Big B, comedy. Ghalib के खत, लाल किले का आखिरी मुशायरा, सर इकबाल, शाहजहां, ओ मुमताज, सन्स ऑफ बाबर, तुमको चाहूं, पोल्यूशन हाजिर हो, कॉमेडी, मॉडर्न आर्ट, राजा नहर सिंह, पाकिस्तान और अल्जाइमर्स, टेल ऑफ द ताज, बेगम अख्तर, म्यूजिकल, कल ठुमरी, बारी बारी है, 1857, शरीक गालिब, चचा छक्कन in action, comedy, and many as such. These are just few instances, my dear participants, of his rather too many prominent works on the stage as writer, director, and actor, as you can see the clippings that is being shared by Dr. Ravinder. He has a unique flair for humor, history, and histrionics. He heads India's prominent theatre group, Pierrot's troupe, renowned for its original, topical, and incisive plays. Sir is a widely traveled personality with many of the above mentioned plays, like I just mentioned. He's traveled all over the country as well as abroad, including UK, USA, Canada, Kuwait,
UAE, Saudi Arabia, Oman, and Pakistan. Dr. Alam also has written and directed good number of TV serials, documentaries, and quiz shows like Maulana Hasrat Mohani, docudrama Ghubar-e-Khatir, Pehchan, Prarambh, गजल उसने छेड़ी, इंतखाब, एक शाम गजल के नाम, मुअम्मा, क्विज शोज, इल्म, बच्चों का गोशा, क्विज शो फॉर चिल्ड्रन, जहान गालिब, डॉक्यूड्रामा, आए करें दिल की बात, chat show, etc. He is also, like he says, fortunate enough to have portrayed some Urdu legends on stage as well as screen, including Ghalib, Zauq, Daagh, Iqbal, and Akbar Allahabadi. No less, he's also proud of his portrayal as middle-aged Gandhiji on stage. Dr. Alam has been closely associated with children's theatre also, and he has written many plays and directed them, including Shareek-e-Ghalib, Meera Yashodhara, Anand Math, 1857, Sardar Bhagat Singh, Krishna, Raja Nahar Singh, Jai Subhash, Jai Hind. Beside this, Dr. Alam has been associated with radio also, radio series for All India Radio on prominent historical literary personalities, including Mumtaz Mahal, Mir Taqi Mir, Muhammad Hussain Azad, Munshi Premchand, Hasrat Mohani, K.L. Sehgal, Ulp Utpal Dutt, etc. Last but not the least, Dr. Alam also wrote a book and several research papers on Palestine issues and international politics in Persian Gulf during his 3-year spell with academics. He's also been conferred with honors like prestigious Ghalib Award for Urdu drama, then Delhi Urdu Academy Award, India Harmony Award, which he dedicated to all the former and current members of Perros Troupe, a theatre company to which he owes what all he has done, able to do creatively and professionally in his life. So, ladies and gentlemen, my dear friends, participants here, it gives me an immense pleasure to welcome Dr. Alam here. Like it is said, the mission of the theatre is to change, to raise, and to raise the consciousness of people to their human possibilities. Theatre is a spiritual and social x-ray of its time. So, sir, not keeping myself between your listeners, I am going to take the opportunity to officially welcome you to this wonderful second session of a 2-week online refresher course. So, you're welcome. आपका बहुत बहुत खैर मकदम है. Namaskar, sir. Please. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so very much. Thank you to each and everyone in this meeting. Being an actor and also to an extent being a writer and director, my only problem is that I went on to become a writer only because I could not speak, that too in public or publicly. So the best option for me whenever I'm put into such a situation to thank you so very much for being connected with the academicians. My last interaction with the academicians was in 1989 when I used to be an academician myself and then quit my job to become a journalist. Ever since, I have not been in any kind of touch with academicians. So thank you so very much for bringing me back to the fraternity that I happen to be the part of. Somehow or because of the turn of the fate, I had to say goodbye to academics and did some sort of journalism with a news agency, which has been in news recently, called IRNA, Islamic Republic News Agency, the official news agency of Iran. So was with them from say 1992 to 1999. Ever since I have been doing theater as of course principally. So your audio is low. So your audio is low. Audio बहुत कम आ रहा है, sir. Am I audible now? A little less, sir. Can you raise the audio? I think. How is it done? Just a minute. Ravinder ji, can you help here? Sir, please try to be close to the mic. थोड़ा सा माइक के अपने नजदीक आ जाइए. देखिए अब देखिए, अब मैं सुनाई दे रहा हूँ.
जी ठीक है, अभी सुनाई दे रहा हूँ या कोई दुश्वारी है तो बता दीजिए मुझे। थोड़ा सा लो है अब आवाज। आई डोंट नो, अर्लियर इट वाज ओके। ऐसा क्यों है? ये अब मेरे ठीक है, फोन के अब ठीक है सर, अब ठीक है। वट एवर यू डिड अब वाज ओके। जी जी, ओके सर, बताइए। जी सर, प्लीज प्लीज कैरी ऑन, सॉरी टू So, डिस्टर्ब। thank you so very much for bringing me back uh, amongst academicians. Uh, now I'm open to question. I'm open to an interactive session. Anything related to theater and not at all related to academics. You are most welcome to 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 talk to me, to converse with me. Um, Talking a little bit about theater as stress buster. Well, this has been my case when I happened to be a student of political science, particularly international politics. So, as a stress buster, I used to read a lot of literature. After my classes, never used to read anything which is related to science or politics or political science. In fact, we had grave doubts whether political science is a science or not. I don't think it was a science. Uh, we used to say those days, science, political science is not even an art. Uh, so anyhow, reading literature as a stress buster, as something which would give me a relief from international issues, the international political issues, the Palestine problem. Even those days, it was as burning as it is today. Um, that somehow attracted to me attracted me to theater also, um, which led me to become an active participant. So it was not limited to reading plays only, that too Shakespearean plays, which I despise nowadays. That I quit academics, went on to become a journalist, and again as a stress buster, used to do theater in the evening from say 6:30 onwards, 6:30 to 9:30. Used to come back to my one room apartment, then uh, uh, used to write my thesis. Also was doing PhD and started smoking also, because लोग कहते थे कि अगर 2 सिगरेट पी लो तो रात को नींद नहीं आती, which is a myth. So, and It's I right. quit. Smoking is injurious. I quit So it's right. academics and I quit Smoking smoking is also. injurious to health. Yes, sir. So Yes, two sir. things that I have not been part of are academics and smoking. Anyhow, now I'm open to an interactive session, anything related to theater and to an extent to academics also, and the relationship between academics and theater or the stagecraft. I'm open to questions, open Okay, to so free you and fair okay, so discussion. so you want to have it as an interactive session. Fine. Actually usually ये होता है sir, the speaker जी speaks आप for some time and then we have a जी question answer session. ओके So ओके if you want to share your anecdotes, you can do that, and then maybe we can just go for a QA session. if we can have a question answer session first and then let the speakers Okay. Okay. Okay, so I'll request my tech team to enable the chat box, and I request my participants to please share your questions. Uh, I think again your audio is very low. my audio. Audio is again low. Yes. By the time these my participants they can share their questions. Can I ask you to kindly enlighten us about that? Like you spoke about your journey from a student to a theater person to a theater person, and then from academics you came to theater person. So can you just let us know दैट जैसा आपने लिटरेचर की बात की, मैं आपको बता दूं सर, प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब आए थे एंड ही स्पोक अबाउट सम वेरी इंटरेस्टिंग things like how our positive hormones get activated when we do theater and when we do creative activities.
So, can you tell us something about your journey towards theater, and how it helped you in your stress moments? Like you said that you had those stress moments, and then how it took you towards theater. See, I will keep it very simple. Right, sir. I have been a sports person throughout my life. Okay. A failed sports person. Mm-hmm. Uh, could never represent university or could never represent my state. But given a choice, if I wanted to be someone, I wanted to be a hockey player or a cricketer, um, which I couldn't, unfortunately. But I have been passionate about sports. Passionate about sports. So Mm-hmm. theater is something which lies somewhere between literature or between academics and sports. See, it involves a lot of mental introspection as well as physical activity. So I think this would have been one of the reasons why I was inclined to theater, despite the fact that I did not do theater during my student days, and Mm-hmm. that too in Aligarh, which was as far as dramatics are concerned, it was quite active, very active, and I Yeah, mean. most of I happen to be Mhm. the audiences of almost all the plays which were performed in Aligarh those days, and plays used to be performed in front of an audience comprising, say, 2,000 people or 1,500 people. Ji. Something which has never happened to me during my last 25 or 30 years in theater. Maximum Ji. we perform in front of an audience Mhm. comprising, say, 300 people, 400 Mhm. people, to the largest extent 500 persons. So anyhow, to me personally, I mean, if given a choice, I would have been a hockey player. If given a choice, I would Okay. have wanted to be a cricketer also. Was a very good leg spinner. So but Wonderful. that could never happen. That could never happen. So when I watched a couple of plays in Delhi, then I thought that this is closer to sports, or this is an activity which is most close to a sport related activity, because Mhm. this involves um, 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 physical movements. So I decided to join theater group, but given my inhibitions, I decided to be a writer, the playwright. Uh, 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 those days, lots of adaptations were happening in Delhi, and they are still happening. So while I had come from Aligarh, and Aligarh did not believe in adaptations, I have Mhm. heard that it believed in adaptations in 60s and the first half of 70s. But most of the drama groups in Aligarh, or rather in university, they used to do original plays. So I was quite surprised when I came to watch plays in Delhi. Despite the fact that these are being staged by the stalwarts who we had heard about in our childhood also, for example, Ibrahim Al-Qazi Sahab or Habib Tanveer Sahab, uh, most of the theater was, if I can say, non-original. Um, there was lack of original scripts, rather original plays. So I decided to, I mean, with the permission of the members of the group, I joined. Instead of being an actor, I would like to be a playwright first. So this is Mhm. how I started writing plays. After writing plays, I used to do bits and pieces role, and I So used to fill the blanks. yes, If right, an sir. actor is Right. missing, if somebody is not Right. turning Right. up for rehearsals, Right. am I audible? Yes, sir. I think, sir, questions are coming as you requested. Our जी participants जी have flown जी in with the questions are flowing up. जी Since this session of ours, this entire, sir, refresher course is based on stress management जी and holistic development. So, and theater, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा अभी बताया कि
if chosen, you would have been a sportsman. But I think theater is more like a stress buster for your mind. So it's a mental sports. Don't you think so? And it must have helped in some way for your in a way to kind of curtail stress. Sir, I'm just taking some quick questions, then you can जी continue since you have requested for an interactive session. ये डॉक्टर माधव गोपाल जी हैं। जी ये पूछ रहे हैं, सर, why do you despise Shakespeare's plays? So if you if you want to take the question. uh, uh, I despise him because when I was in high school, we had to have two questions from a play, Merchant of Venice. And I come from a small town called Basti in eastern UP. So I could never fathom why Merchant of Venice is at all required in Basti. And why should a student of a Hindi medium school read Merchant of Venice instead of a play, any play, even in English, by an Indian writer? So Wonderful, this is wonderful, sir. uh, Rightly said, rightly said. this is So this is uh, this is what I could never fathom. This is what I could never fathom when I started really reading Shakespeare seriously. So I still have some problems with him. Long sentences, long dialogues, petty politics, those kind of politics which used to happen in every mohallas of Basti those days. Sir, So this question is directly connected with what the point that you're raising. Can you suggest some plays or some literature that can act as as a window, like जो शिकायत आपको as a student थी, या हमारे पास साथ कई हिंदी साहित्य के लोग भी जुड़े हुए हैं। जी जी तो आपको क्या लगता है कि बेसिक कोई ऐसा प्ले हो या कोई ऐसा उपन्यास हो या लिटरेचर हो जो हमारे इंडियन उससे है, जो बन सकता है, जो भाई, बच्चों को बहुत सारे हैं। हम्म, मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिर्फ मुंशी प्रेमचंद पढ़ लें जी, तो हमारी आधी जिंदगी तो उनको पढ़ने में बीत जाए। वाह, जी तो जी, मुंशी, आई मीन, nothing against Shakespeare साहब, I have learned a lot from him. I have learned the art of storytelling from him. I have learned the art of uh, throwing good lines to audience while you are telling a story. हम्म, Nothing against him, nothing against him. हम्म, But see, we too have too many Shakespeares. हम्म, We have a great writer called Munshi Premchand, हम्म, and his body of work is huge. लेकिन हम बहुत ज्यादा जहमत गवारा नहीं करते कि हम मुंशी प्रेमचंद को पढ़ लें। और फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कितने लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट ह्यूमरिस्ट। हम्म, वो जो उन्होंने, जिसका न कभी हमारी हिंदी सिनेमा ने फायदा उठाया, ना हिंदी थिएटर ने फायदा उठाया, कि बगैर फार्स किए, बगैर कॉमेडी किए, ह्यूमरिस कैसे, आपका आपका सेंस ऑफ, आपका हिस्से मिजाज, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान से भी कैसे निकल सकता, एक गरीब आदमी के मुंह से भी कैसे निकल सकता। एनी हाउ, कहने का मतलब है, आप हमको, अगर हम शेक्सपियर से शुरुआत कर लें, या क्या वो रेनू हिंदी लिटरेचर में, कमलेश्वर, तो कमलेश्वर, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, लिटरेचर की तो हमारे पास कमी ही नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हम इतना वक्त निकाल ही नहीं पाते। कि भाई, मैं अपना किस्सा आपको बताऊं, मैं थियोराइज करना नहीं जानता हूं। हम्म, हम तो हर वो चीज जो कोर्स में नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर हुआ करती थी। सिर्फ पढ़ने से छुटकारा मिल जाए, फिर आप चाहे कबड्डी खिलवा लें, चाहे क्रिकेट खिलवा लें, चाहे हॉकी खिलवा लें, चाहे आप हमसे इब्ने सफी की जासूसी दुनिया पढ़वा लें, चाहे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़वा लें, चाहे फिल्मी मैगजीन पढ़वा लें। यहां तक कि पैलेस्टाइन इशू में भी हमारा इंटरेस्ट जो पैदा हुआ, वो हुआ अखबार पढ़ के। हम्म,
तो हमें जहां भी मौका मिलता था कि हम पढ़ाई अब जो मास्टर जी ने सुबह पढ़ा दिया है हम्म, और जो मैथ शेषनाथ पांडे साहब ने पढ़ा दी है, अब उससे छुटकारा मिल जाए। तो हम पता नहीं कितने लोग मेरी उम्र के यहाँ बैठे होंगे, हम राम रहीम पढ़ते थे, राजा इकबाल पढ़ते थे, जासूसी दुनिया पढ़ते थे, शमा पढ़ते थे। हम उस बहाने हम बहुत अच्छा लिटरेचर भी पढ़ जाते थे। बल्कि अगर कभी अच्छा लिटरेचर हमारे कोर्स का हिस्सा हो जाता था हम्म, तो हमें वो लिटरेचर भी अच्छा नहीं लगता था। राइट गालिब सर। की वो हम्म, गालिब की वो गजलें या मुंशी प्रेमचंद की वो कहानियां जो हमारे पाठ्यक्रम में होती थी, बस वही हम्म। मुझे नहीं अच्छी लगती थी। सर कुछ क्वेश्चंस हैं, जी मैं जी पढ़ देती हूँ। ये डॉक्टर अन्नपूर्णा पृष्टि जी का सवाल है। आई जस्ट जी रीड आउट द क्वेश्चन। वो पूछती हैं, सर व्हाट आर द क्राइटेरिया टू मेक थिएटर अ करियर? व्हाट आर द एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन? एंड प्लीज सजेस्ट सम ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशन टू जॉइन आफ्टर ग्रेजुएशन. You join after PhD. but I did not join any institute or Yes, institution. I yeah. firmly believe that there are two fields, journalism and theater, and also to an extent cinema. These Mhm. cannot be taught. You cannot Right. learn it from any institute with bricks and Mhm. wall and roof. I think this art, to a large extent, theater, also journalism, this is what you learn from your experiences, Right, trial sir. and error. But Mm. anyhow, again, this is nothing to hold against various drama schools and dramatic colleges, drama colleges that have come up over the past few years. But yes, of course, NSD is was the best and is still the best. Uh, Mhm. there are several what we call branches of NSD, Shakhaएं, Banaras and Sikkim and Bhopal. I don't think they are good enough. I don't think they are good Mhm. enough. But the one in Delhi is one of the best, rather the best. Similarly, lots of schools have come up, acting schools. Mhm. I would suggest that one should despise them just as I despise Shakespeare. They can be great learning institutes, but see, Mhm. theater, the best theater you can learn while joining an active theater group, Mhm. which are many in Delhi, which are many in major metro cities, which are in good number in small towns also. In case they do not exist, make create your own theater group. You need only more than one person to do Sir, theater. sir, And जी I just want to mention here, जब आपने बात निकाली है, कहा है तो कि our college holds a very prestigious theatre festival, रंगायन, and जी 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 and अभी इस आपके लेक्चर से पहले हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी बता रहे थे कि किस तरह से वो खुद थिएटर से जुड़े हुए हैं और इसकी स्थापना उन्होंने ही की थी कई साल पहले. तो वी आर अ वेरी एक्टिव college in terms of theater. We have a 3-4 day long theater festival. It's called Rangayan, and there are many products in the cinema also at present. Rajkumar Rao is our former student, और सर खुद पर्सनली रुचि रखते हैं थिएटर में. एंड अभी जो हमारी टेक्स टीम सपोर्ट है, हमारे मेरे साथी अभी जो मेरे साथ हैं, श्री डॉक्टर रविंदर पंत जी, जो अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली रंगमंच के खुद एक्टर हैं. रविंदर पंत जी हैं अभी मेरे साथ. रविंदर जी, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन योरसेल्फ? मैम एक बात मैं बोल दूं, जी. the one liner to the question which was asked to me: learn यस सर. theater not after graduation, learn ओके. theater when you are doing graduation. हम्म. See, schools and colleges and जी सर. universities हम्म. are the
institutes to teach you theatrics and dramatics हम्म। instead सर of professional theater institutes or institutions. सर इसी से जी जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि वो जी हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है। आजकल हम बहुत स्ट्रेस देख रहे हैं बच्चों में, एंड बच्चों में क्या, हम टीचर्स में भी। तो क्या हम स्टूडेंट्स को किस किस तरह से, बिकॉज यू सी दे हैव असाइनमेंट्स, दे हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू, पेपर लिखना है, एग्जाम्स हैं, तो हम स्टूडेंट्स को किस तरह से थिएटर के जरिए जोड़कर उनके जीवन के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ बड़ा एक्टिव थिएटर ग्रुप है, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या हम लोगों को एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स, क्या सलाह देना चाहेंगी कि हम थिएटर को किस तरह से यूज करें जो बच्चों को स्ट्रेस कम करने के लिए फैसिलिटेट देखिए करें? मैम, अगर आप उनको असाइनमेंट भी देंगी, उनके एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा रखेंगी, और वो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर एंड एट्थ सेमेस्टर एंड नाइन्थ सेमेस्टर्स एंड मंडे टेस्ट एंड ट्यूसडे, और उसके बाद थिएटर भी करवाएंगी, तो वो उनके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हम्म। आप ये जो एकेडमिक असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं, इसको कम कीजिए, या एकेडमिक्स को थिएटर के जरिए बहुत पुरलुत्फ बना दीजिए। आप जो वंडरफुल। जिसको मैं कहता हूं, मैं एजुकेशन थ्रू थिएटर, राइट, हाँ। आप जो असाइनमेंट देती हैं, अब मुझे नहीं मालूम फिजिक्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में कैसा होगा, लेकिन अगर न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था उसको ड्रामेटाइज कर दीजिए फिजिक्स की क्लास में, जी जी। और न्यूटन अगर भारतीय होता और सेब उसके सर पे गिरता, तो न्यूटन सेब के साथ क्या करता? जी जी। तो इसको ड्रामेटाइज कर। तो जो आपका करिकुलम है, करिकुलम में एक बार असाइनमेंट को बैक ट्रैक करके असाइनमेंट को ड्रामेटाइज करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो जब आप प्ले देखने आती हैं तो मैं बहुत डरता हूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री पे बहुत प्लेस करता हूं, जी सर। और हिस्ट्री पे भी मैं कॉमिक प्लेस करता हूं। जी। तो मुझे लगता है कि भाई कोई हिस्टोरियन आ जाए और वो नाराज हो जाए कि ये आपने अकबर का क्या कर दिया, और बाबर का क्या कर दिया, और महाराणा प्रताप का क्या कर दिया। लेकिन मैं देखता हूं कि जो मैंने एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट, जो जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे इल्म है, और अगर मैं इमोडेस्ट नहीं साउंड करूं तो मैं कहूं खासा इल्म है, हम्म। आ, उस इल्म को मैं बहुत आसानी से थिएटर में चैनलाइज कर सकता हूं। जी। तो मैं अपने ज्ञान को थिएटर में चैनलाइज कर सकता हूं, मैं अपने थिएटर के ज्ञान को इल्म में चैनलाइज कर सकता हूं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, बिला वजह अपनी तारीफ होगी, मैंने जब प्ले लिखा मौलाना आजाद हम्म। या पाकिस्तान और अल्जाइमर, तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे हम्म। एहसास हुआ कि ना तो पार्टीशन वो है जो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया, ना मौलाना आजाद वो है जो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए। तो लाओ, जो मैंने यूनिवर्सिटी में मौलाना आजाद और पार्टीशन के बारे में पढ़ा है, और जो आप लोग हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, एक चीज आपके यहाँ शुरू हुई है, क्या कहते हैं उसको, सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव। हम्म। तो हम्म। ऑल्दो मुझे सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव नहीं मालूम था, और जब मालूम हुआ तो मुझे बहुत खराब भी लगता था कि अरे हम्म। भाई, हिस्ट्री में राजाओं रानियों की कहानी पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा रहे हो कि गल्ला कितना पैदा होता था, टैक्स कितना लगता था, मालगुजारी कितनी होती थी। तो हम्म। आ, आ, अल्लाह माफ करे, हमें सबसे खराब क्लास प्रोफेसर इरफान हबीब की लगती थी। अब अफसोस होता है कि, हेलो, जी 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 सर, हाँ। हाँ, आपका मैं दिख वीडियो रहा हूँ नहीं, जी। आप दिख अब नहीं मैं रहे हैं दिख रहा सर। हूँ, हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दिख गुड। रहा हूँ। यस। तो, तो पर अब अफसोस होता है कि उनकी क्लास अगर हमने और कायदे से पढ़ी होती तो हम शायद बहुत, जो अब कभी कभी कुछ कंफ्यूजन होता है तो प्रोफेसर नजफ हैदर से पूछना पड़ता है, तो जी। अली नदीम साहब से पूछना पड़ता है कि भाई, हम्म। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं, मैं एक प्ले में अकबर बन के एक डायलॉग बोल रहा था, तो मैंने बोला जजिया। हम्म। एक साहब ने कहा कि नहीं, सही शब्द है जिजिया। हम्म। मैंने कहा भाई, मैंने कभी हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं जिजिया, हमने तो जजिया पढ़ा हमेशा।
फिर मैंने उनसे मजाक किया, तो वो अकबर तो जजिया बोलेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस Yeah, तरीके that's से a बात, wonderful. That's really wonderful तो to मैंने कहा connect. हो जी सकता जी है जी. अकबर ने जिजिया को जजिया बोलना शुरू किया और तब से ये प्रथा बन गई हो। हाँ, तो हाँ. एनी हाउ देखिए, हम जी जैसे जी. जाहिल नाकारा स्टूडेंट्स ने जो हम्म. इल्म कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हासिल किया, उसको हम थिएटर में चैनलाइज कर सकते हैं। इसी जी. तरीके से आप जो इल्म पढ़ा रही हैं या बच्चे जो इल्म सीख रहे हैं, उस पे छोटी छोटी थिएट्रिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो उसमें सिर्फ आपकी मेंटल फैकल्टी के इन्वॉल्व होने के बजाय आपका के फिजिकल एक्शन भी इन्वॉल्व होगा, तो हो सकता है आप स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ज्यादा दिलचस्पी लें। हम्म. तो एकेडमिक्स को थिएटर के थ्रू पढ़ाना एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एकेडमिक्स का हो सकता है, और खासकर सोशल साइंसेस। जी जी जी. मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, So जिसको मैं कहता हूँ I'm already क्लासरूम थिएटर। imagining if Newton was Indian and the apple fell on an Indian scientist. I'm already जी जी imagining. जी 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 जी। तो भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने इतनी अच्छी नेमत से नवाजा। चलो खाते हैं इसको। सर, इसी इंटरेस्टिंग डायलॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी. रविंदर जी, आप पूछना चाहेंगे सर से डायरेक्टली? Dr. Ravinder, yes, sir, you can see Dr. Ravinder. He's uh, he's our faculty in the commerce department, and he is a very active theater artist also. Dr. Ravinder, जी, please. नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर एक सवाल मेरा है, जी फरमाइए। अक्सर जो लोग थिएटर रेगुलर नहीं करते, प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, जी जी एमेच्योर हैं, कोई एडवोकेट है, जी कोई डॉक्टर है, अपनी रोजमर्रा की जी जिंदगी जॉब में वो जा रहा है, जी तो वो जी स्ट्रेस से बचने के लिए थिएटर की ओर आता है, थिएटर का रुख करता है। जी 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 लेकिन जो लोग प्रोफेशनली थिएटर कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी जी थिएटर से चल रही है, जिनको पता है कि जी टिकट्स नहीं बेची तो कुछ हो जाएगा जी या शो नहीं लगा तो कुछ हो जाएगा, वो लोग अपने स्ट्रेस से बचने के लिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? हम एक बहुत कामयाब प्ले करके जब आते हैं, और खुदा ना खास्ता वो प्ले बहुत कामयाब हुआ हो और हाउसफुल हुआ हो, तो हम एक बहुत ही खराब फिल्म देखते हैं टीवी पे, जिसमें गोली के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक गोली चार लोगों को लग जाती है। तो वो हमारा या हम न्यूज देखते हैं, या हम चेस खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए जो लोग प्रोफेशनल हैं, अब उनके लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल है थिएटर। आ, हम उससे बचने के लिए फिर अगेन लिटरेचर का सहारा जरूर लेते हैं। आपको जितने भी स्ट्रेसेस हों, लेटने से पहले आपने एक किताब उठा ली और 10 से 15 पेज आपने उसके पढ़ डाले, या स्पोर्ट्स, या वॉक। आ, खेलना तो तमाम उम्र कभी नहीं बंद करना चाहिए। अगर आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आपके सिर्फ हाथ और आंख में ताकत बची है, तो शतरंज खेलिए। तो अब मैं बहुतों के बारे में नहीं जानता, मेरा स्ट्रेस बस्टर तो यही है कि मैं या तो बैडमिंटन खेल लेता हूँ, या एक बड़ी खराब सी मार धाड़ वाली, खून खराबे वाली फिल्म देख लेता हूँ। तो वो हमें स्ट्रेस बस्टर होता है हमारे लिए कि हमें जो गलतफहमी हो जाती है कि मैं थिएटर के जरिए इनकलाब ला रहा हूं और मैं समाज को बदल दूंगा, और आज मैं बहुत अच्छा हिंदू मुस्लिम एकता पे पैगाम दे के आया हूं अपनी ऑडियंस को। या हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई थी प्ले देखने के लिए, वो हम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मुझे लगता है कि हम टीचर थे, ऑडियंस जो है वो हमारी स्टूडेंट थी, और हम उसको एजुकेट करके चले आए। तो जब आप फिल्म देखते हैं, मान लीजिए आप आए और रात को बैडमिंटन खेला और अपनी बेटी से हार गए बैडमिंटन में, तो वो आपकी ईगो को सबसाइड कर देता है। तो हम लोग का स्ट्रेस बस्टर यही होता है कि कुछ पढ़ लिया, कुछ खेल लिया, हंसी मजाक कर लिया, चाय पी ली, ऑडिटोरियम से बाहर निकले, सबको आइसक्रीम खिलाई, लेकिन कहा कि 10 रुपए से ज्यादा महंगी आइसक्रीम कोई नहीं खाएगा। तो इस तरीके की चीजें, एक दूसरे की लेग पुलिंग की थोड़ी बहुत
परफॉर्मेंस में जो हमसे अच्छी या खराब चीजें हुई थी उनका मजाक उड़ाया। और एक चीज मैं सर आपको और बताऊं, एमेचर और प्रोफेशनलिज्म ये बहुत ही आर्टिफिशियल। सबसे अच्छा थिएटर वो कर रहे हैं जो प्रोफेशनली इन्वॉल्व नहीं है। मेरा मानना है दिल्ली में सबसे अच्छा थिएटर दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली के स्कूल्स कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, जो शख्स डॉक्टर है, जो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है, हाँ, वो कुछ कम इल्म नहीं रखता है या इंजीनियर है, उसको उसकी एनर्जी किसी और चीज में चैनलाइज करनी। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं मैं मुद्दे से भटक रहा हूं या नहीं। नहीं नहीं सर, प्लीज गो ऑन प्लीज। मेरे ग्रुप में जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएससी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरे ख्याल से साइंस की एजुकेशन की वजह से वो बड़े क्लियर हेडेड हैं। वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे मेरे ग्रुप में जो सोशल साइंस का स्टूडेंट है, वो एक्टिंग करते वक्त हमेशा ये ख्याल रखता है कि कैसे मैं 2 और 2 5 कर दूं। सर वॉल्यूम थोड़ी लो हो मेरे गई है ग्रुप में जो आपकी, सर माइक सर आई। आपकी वॉल्यूम लो है मैं- सर, आ, ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए। देखिए, अब आई आवाज? हाँ आ रही है लिटिल। मैंने बोला, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट मेरे ग्रुप में हैं, वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। और जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे 2 और 2 5 कर दिया जाए। और साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है, वो कहता है कि दुनिया में जितनी भी कोशिश कर लीजिए, 2 और 2 4 ही रहेंगे, जब तक कि कोई मैथमेटिशियन ना आके बताए कि 2 और 2 5 होते हैं। तो वो ज्यादा क्लियर हेडेड है। तो मुझे लगता है, अब देखिए, ये एजुकेशन, अच्छा, जो सोशल साइंस का स्टूडेंट है, वो तो बगैर सोचे तो कुछ मानता नहीं है। तो साहब, ये यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, बहरहाल। तो एमेचर जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ये बहुत अच्छा थिएटर करते हैं और बहुत अच्छा थिएटर कर सकते हैं। राइट सर। जी तो तो सर इसी इससे मतलब एक ख्याल हमारे जहन में आ रहा है कि कोई क्योंकि जैसे अगर हम देखें, कई एक्टर्स ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं जिनका कोई ह्यूमैनिटीज से बैकग्राउंड नहीं हो, कोई इंजीनियर है, जी कोई डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर श्री राम लागू थे। जी 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 आपने उत्पल दत्त पे भी कोई आपका, मैं जब वो पढ़ रही थी तो उस पे आपने कुछ लिखा था कि उत्पल जी दत्त जी ने जी जी रेडियो रेडियो फीचर किया था। रेडियो फीचर किया था। तो अमूमन यही देखा गया है कि जो पुराने स्टॉलवर्ट एक्टर्स रहे हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरली इट हैड टू बी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। तो ये बहुत तो किस तरह से हम लोग एज टीचर्स, सर एक क्वेश्चन आ गया है, मैं अपने सवाल से पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ आपसे सर। ये अच्छा, सर से सवाल पूछने से पहले, डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आप में से कोई सर से डायरेक्टली पूछना चाहे, जस्ट लेट मी नो, आई विल अनम्यूट यू, यू कैन आस्क डायरेक्टली टू सर। और एक चीज और है। जी सर आ, बताइए। मेरी मेरी बात को बिना किसी तकल्लुफ के आप बीच से काट सकते हैं। नहीं नहीं सर नहीं 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 नहीं, फिर वो इंटरैक्टिव नहीं रह जाता, फिर वो तो जी लग जाता है, फिर वो टीचर टॉट हो जाता है। और नहीं टीचिंग अ टीचर, इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता। That's really kind of you, sir. And आपने मुझे पहले ही कहा था कि I would love to have an interactive session, and I'm जी honoring that, and I'm respecting that concern of yours, and उसी को जी रखते हुए, I'm just going to the next question, sir. This question is by Dr. Bhagat Singh Bakuni ji, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं सर। ही इज आस्किंग, ओ सर पंचायत टीवी सीरीज बनाने वाले आईआईटी से हैं, मेन एक्टर जितेंद्र भी आईआईटी से है। जी एनीबडी कैन डू एक्टिंग, एजुकेशन इज नॉट क्राइटेरिया। आई थिंक ही इज एनीवन आस्किंग एनीवन anyone. See, acting is as easy as reading the morning newspaper. The only hitch is
but you have to read morning newspaper every day, come what may. So now coming back to his question, acting is absolutely easy a task provided you practice it a lot. This is how acting is sports. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप एक कवर ड्राइव मारने के लिए आप 600 बार वो कवर ड्राइव मारते हैं जी 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 नेट पे, या आप एक स्मैश करने के लिए बैडमिंटन में उसके 100 बार वो स्मैश की प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज एक्टिंग ऑल्सो. एक्टिंग में अगर आपको एक डायलॉग बोलना है कोई भी कि भाई खामोश भी रहिए, मैं 16 बरस की, मैं 16 बरस की, कुछ ऐसा गाइए कि यकीन आए. ये आप जब तक 150 बार इसको बोलेंगे नहीं तब तक आप स्टेज पे नहीं बोल पाएंगे. जी जी तो स्पोर्ट्स की तरह थिएटर में एक्टिंग बहुत जरूरी है. उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है. आप बिल्कुल गैर पढ़े लिखे हो सकते हैं. अगर आप आज्ञा दें तो मैं मेरे ग्रुप में मैं एक जगह थिएटर वर्कशॉप लेने गया था, जी तो सर. एक बच्चा चाय बना के पिला रहा था हमको. हम्म, तो उसको मैंने देखा वो शीन काफ खे बहुत आसानी से बोल ले रहा था. और मैंने कहा भाई किस क्लास में पढ़ते हो? बोला सर 8वीं तक पढ़ा है मैंने, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई इस परिवार में, और मैं अब चपरासी वगैरह हूँ, यही चाय बनाता हूँ. तो मैंने जहां मैं वर्कशॉप ले रहा था मैंने कहा मैं इस बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ. उन्होंने कहा कर लीजिए. दैट जेंटलमैन इज अ राइटर ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 हिट OTT सीरीज. वंडरफुल वंडरफुल. उसकी क्वालिफिकेशन है 8वीं फेल. तो यानी वो उसका उसका जहन बहुत अच्छा था, पर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उसको चैनलाइज नहीं होने दिया. इसी तरीके से मैंने जब मैं स्कूल में बच्चों के साथ प्लेस करता हूं तो मैं अपनी एक्टर्स बदमाश बच्चों को लेता हूं कि ये एक्टिव हैं, ये एनर्जेटिक हैं, बस ये बिगड़े हुए हैं. इनको थोड़ा सा चैनलाइज कर दो, इनको इस बात का लालच दे दो कि देखो अगर तुम एक्टिंग करोगे तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 10-15 दिन क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी तुम्हें. जी तो कहते हैं हाँ ये फायदे का सौदा है. जी. तो फिर वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं बिकॉज वो मेंटली बहुत एक्टिव हैं, वो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, वो उनके अंदर इनहिबिशंस कम हैं. तो पढ़ा लिखा होना या कोई क्वालिफिकेशन होना क्राइटेरिया नहीं है. लेकिन 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 जब आप एक्टिंग करने लगे तो अपना ज्ञान वहां तक ले आए जितना के एक BA के बच्चे का होता है या एक MA के बच्चे का होता है. यानी आपको इनफॉर्मली एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी. जी जी सर. तो आपको लिटरेचर में, शेरो शायरी में जब उस कि ठीक है साहब आप 9वीं क्लास पास हैं तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो मुंशी प्रेमचंद पढ़िए. तो मुंशी प्रेमचंद तो अब आपको एक ग्रेजुएशन में जो बच्चा जिसने जितना मुंशी प्रेमचंद पढ़ा है एज एक्टर आपको भी उतना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए. सो मैं संक्षेप में कह दूं कि फॉर्मली पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली पढ़ा लिखा होना जरूरी है. Wonderful. Sir, on that thought, I'll just take another question. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शंस भी आ रहे हैं. इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सर, वंडरफुल. ये नेहा सिंह जी हैं, ये पूछ रही हैं, सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वंस रिलेशनशिप विद द सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिएटर? We have discussed both selfing and de-selfing through the journey of this course. Your own input on this would be a valuable addition. She's trying to ask that how, sir, क्योंकि हमने ना हमारे इस कोर्स में कई ऐसे हमारे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें हम since we are dealing with stress and overall development, mental health और ये सब, तो उनका ये सवाल है कि what are your thoughts on one's relationship with the self in the context of theater?
we have discussed selfing and de-selfing. So हम अपने को कैसे पहचाने थिएटर के थ्रू? Because we've been discussing this discourse, ये discourse चल रहा है हमारे पूरे सेशन में, कई सेशंस में, कि सबसे important होता है अहम, अपने को पहचानना. So how does theater help in that? Probably that's what Neha Okay. is asking. जी sir. पहले तो बहुत लाइट हार्टेड आंसर. हम जब रिहर्सल करते हैं तो हर आदमी को रोज चाय पिलानी पड़ती है बना के. तो ये सबसे पहले आपकी ईगो किल करती है जी. कि चाहे तो सईद आलम को, डिस्पाइट बीइंग द राइटर, डायरेक्टर एंड लीड एक्टर, सईद आलम को चाय तो बनानी है और जूनियर मोस्ट को भी पिलानी है बना के. नाउ सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, when you do theater, particularly acting, or you write a play or you direct a play, you come across many characters. Either they are your own creation or you have lifted them from somewhere else. For example, if I'm doing a play called Akbar the Great Nahi Rahe, so Akbar is partly my creation, Akbar is partly the creation of K. Asif Sahab, and Akbar is partly the creation of the way he has come to us through history books and our history teachers. So you come to know about, while doing theater, many people and many persons who you would have not been interacting had you not been a theater activist. For example, I would have never come to know about Mumtaz Mahal, or I would have never come to know about the elder brother of Munshi Premchand's Bade Bhai Sahab, because I would have never been able to perform that role, to live that character which Munshi Premchand has portrayed in his famous short story Bade Bhai Sahab. So subconsciously you start comparing yourself with your characters. And then you can take a neutral analysis of your merits and demerits. Until and unless we do not live many characters, we do not come to know about many characters, we do not come to know about the people we play and the people we observe, we have a larger than life portrayal of ourselves. So this is how it helps us to analyze oneself objectively, neutrally. अदरवाइज आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत शरीफ खानदान का हूँ, मैं चोरी नहीं करता, मैं, और खासकर हिंदुस्तान में तो अगर आप कोई चीज, सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी, अगर आप कत्ल नहीं करते तो आप अच्छे आदमी हैं, चोरी नहीं करते तो आप अच्छे आदमी हैं, किसी का हक नहीं मारते तो आप अच्छे आदमी हैं. जबकि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये चीजें नहीं करते तो आप बुरे आदमी नहीं है, लेकिन अच्छे आदमी अभी भी साबित नहीं हुआ है. आपको लोगों की मदद करना, इंसानियत की मदद करना, दूसरों के काम आना, कुछ समाज सेवा करना, तो बहरहाल, तो वो हम जो सेल्फ का बहुत लार्जर देन लाइफ एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने बारे में कि मैं तो बहुत नेक, सीधा, सच्चा, शरीफ आदमी है, वो बस वो प्रिक होता है. एंड देन यू, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि यार, like me, every other character that I have portrayed had gray shades. जब मैंने गालिब पे काम करना शुरू किया तो मालूम हुआ कि साहब, गालिब अपने खतों के आईने में और गालिब अपनी शायरी में दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं. हाँ, अपने शेर में तो उनकी ईगो जो है आसमान को पहुंची हुई है, लेकिन कर्ज मांगने में उनकी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बल्कि वजीफा मांगने में. तो मुझे लगा कि भाई, आप जैसे, हम जब तक मैंने थिएटर नहीं किया था, हम सब लोग गालिब, प्रेमचंद, शेक्सपियर, इलियट, इनको खुदा समझने लगते हैं. खुदा नहीं समझते तो नबी जरूर समझते हैं, प्रॉफिट जरूर समझते हैं. लेकिन फिर आप जब इनकी अंडरस्टैंडिंग, फिर आपकी अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं भाई, जिन बुराइयों का मैं शिकार हूं, उनमें से कुछ बुराइयों का शिकार शेक्सपियर साहब भी थे. तो
तो मुझे इतनी आत्मग्लानि की जरूरत नहीं है। This kind of reply can only come from a stalwart on theatre like you, sir. ये question sir हम पूछेंगे थोड़ा सा ये it's related to us academics since we यहाँ पे जी जितने हैं हम academics हैं तो जी आपके इतने vast experience और practical experience जो रहा है उस पे how can busy academics who may not have performance experience start using theatre to manage stress? Do you think theatre-based activities should be formally introduced in college faculty development or student wellness programs? What are some practical exercises or theatre techniques that academic professionals can do even with limited time? जैसे अगर हम क्लास में कोई मुझे याद है जैसे हिस्ट्री में कोई एक इंसिडेंट होता है मैंने खुद आपके प्ले देखे हैं अकबर द ग्रेट और एंड दे आर एक्चुअली रियली स्ट्रेस बस्टिंग दे अकबर द कम ग्रेट आउट नहीं रहे, हाँ अकबर द ग्रेट नहीं रहे माय अपॉलॉजीज नहीं सो रहे। हाँ। हाँ नहीं रहे सो आई माय अब जर्नी वेदर हैज ग्रेट नहीं रहे या नहीं रहे। नहीं राइट सर और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आपका ये प्ले जाके देखना पड़ेगा विच इज रेगुलरली स्टेज्ड एवरीवेयर ऑल ओवर तो जो सवाल ये था कि जैसे अब हम मैं कोई एक इंसिडेंट समझा रही हूँ हिस्ट्री का बिकॉज आई रिमेम्बर that how to dramatize it how to use theater techniques in them and how to convey to are there any theater techniques which we can use in a limited space of classroom that could be It's the very simple. It's very simple. right sir Trial and error. Hmm? Trial and error. Okay Trial and error. okay सिंपली डू इट। आप अगर कोई कोई कुछ पढ़ा रही हैं कि मान लीजिए कि साहब अकबर की टोडरमल से एक मीटिंग हुई कि वो मालगुजारी का क्या किया जाए, वो शेरशाह वाला कंटिन्यू किया जाए या तो भाई जरा एक काम करते हैं कि ये एक इमेजिनरी मीटिंग करते हैं 2 मिनट की 3 मिनट की परफॉर्मेंस दे दीजिए बस। तो okay कोई बहुत देखिए टेक्निक सारी वो हैं जिसमें मैं कहूंगा कि आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और मुझे 10,000 रुपए महीना दीजिए, फिर मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। थिएटर तो ट्रायल एंड एरर से सीखा जाता है। बहुत एक या दो क्लासरूम में बहुत खराब परफॉर्मेंसेस करवाइए किसी भी ह्यूमैनिटीज या साइंस या हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर पे mm-hmm. और उसको एंजॉय कीजिए। तो आपको ऐसा आपसे तवक्को नहीं की जाती कि आप बहुत ही बेहतरीन एक परफॉर्मेंस दे दें। आप जिसको भी अकबर बनाएंगी वो बोलेगा पृथ्वीराज कपूर की तरह। तो तो, जी तो जी 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 तो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं इसको और सबके लिए फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट आल्सो। आप सिंपली प्लेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम्म आप शेक्सपियर को ही पढ़िए भाई, मैं मतलब मजाक बरतरफ वो हम्म ग्रेट ड्रामेटिस्ट है, आप उसके 10 पेज पढ़िए। हम्म फिर एक दिन सोचिए और थिएटर के लिए कोई टेक्निक कोई वर्कशॉप आप 2 लोगों का या 3 लोगों का ग्रुप बना लीजिए और आप एक दिन सोचिए कि भाई शेक्सपियर तो करना बड़ा मुश्किल है लेकिन इसके इस प्ले का पहला पेज लाओ आज परफॉर्म करते हैं। जी 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 और एक बार अपने स्टूडेंट्स को बिठाइए और बोलिए कि जहां हमसे गलती हो टोक दें और एक बार हम्म फिर अपने स्टूडेंट्स को कहिए कि अब तुम ये प्ले परफॉर्म करो और हम टोकेंगे। हम्म तो ये छोटे छोटे बगैर बहुत मेजर टेक्निक, क्योंकि थिएटर क्या चीज है, थिएटर हमने कुछ चीजें प्रैक्टिकली की और जब वो कामयाब हो गई तो उनको थ्योराइज कर दिया और हम्म थ्योराइज करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी थियरीज दे दी। अदरवाइज थिएटर क्या है, थिएटर की जहां तक शुरुआत हुई होगी कि 2 लोग जब रोजमर्रा की जिंदगी से बोर हो जाते होंगे तो सोचते होंगे लाओ आज हम ये इमेजिन करके ये करते हैं। हम्म ठीक है, आज चलो एक काम करते हैं कि रामचंद्र जी जो हैं मिलने आए हैं कैकई से हम्म वनवास पे जाने से पहले। अब आप उसको जैसे भी करना चाहें जिस तरीके से भी कर तो वो स्ट्रेस बस्टर होगा। अगर आपने थिएटर को बहुत सीरियसली ले लिया तो वो जैसे मेरे साथ हो रहा है स्ट्रेसफुल हो जाएगा। खराब एक्टिंग, इंटरएक्टिव एक्टिंग, अरे ये गलत कर दिया, अरे ये गलत हो गया, अरे यहाँ फंबलिंग हो गई, अरे यहाँ ये बोलना था, अरे अकबर इंग्लिश कैसे बोल, मान लीजिए आप वो
एक प्ले कर रही हैं बच्चों के साथ और उसमें आपने अकबर बन के थैंक यू बोल दिया। ओके। तो जी तो, जी 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 तो जी। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, वंडरफुल एंजॉय वंडरफुल इट। सी, वंडरफुल सर, वंडरफुल जैसे सर। आ, हमारे बच्चे जब पार्क में खेलते हैं तो हम्म वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं खेलते हैं, हम्म वो महज खेलते हैं। और हमारे हम्म आप सबके साथ हुआ होगा, बचपन में हमने थिएटर बहुत किया है। हम्म बचपन में हम अपने कजन्स और या देख लीजिए, कोई पापा बन जाता था, कोई मम्मी बन जाता था, कोई डॉक्टर हम्म बन जाता था, हम सबने थिएटर कर रखा है। इनफॉर्मल हम्म थिएटर हम सब लोगों ने कर रखा है। हम्म उसी को अब भी कीजिए, हम्म हम्म। उसी को अब भी कीजिए। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत सर। आपका आपका जो नेहा जी ने आप सवाल किया था और आपने जो इतना खूबसूरत जवाब दिया था डी सेल्फिंग एंड सेल्फिंग पे, उनका थैंक यू आया। मैं पढ़ देती हूँ सर। नेहा सिंह जी लिख रही हैं कि थैंक यू सर, दैट वाज ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड, इट परफेक्टली टाइज अप विद द रोल ऑफ डी सेल्फिंग इन एनी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस विद अ सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। तो ये नेहा सिंह जी का रिएक्शन है। भगत सिंह जी लिख रहे हैं कि सर, टॉम क्रूज इज बेस्ट एक्शन एक्टर, एक्शन आर नॉट ट्रेन्ड इन थिएटर, people enjoy action movie with family in cinema hall and are most earning movies। तो ये अपना एक वो दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं। सर एक सवाल था, हम मतलब ये हमारे जहन में आया था कि जैसे आपने कहा आप वर्कशॉप्स करते हैं बच्चों के साथ एंड स्टूडेंट्स के साथ, have you ever come across any incident where it has helped, जैसे मैं अपना आपको एग्जांपल बता सकती हूँ कि going through a grief and then going and watching a play, it did help de-stress me, it did help me for a moment where I came out from that point of grief and that state of grief. So theater and watching a play, it does help you de-stress and take you out from your negative phase of mind and mental side. So, is there any incident or anything where you can share with us how it helped? Was it a teacher or was it a student that helped the student or teacher to handle stress or anxiety, which you think it can help us also to take as a takeaway? अगेन इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा करना जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट नहीं है, आपको डिस्ट्रेसफुल तो करता है। जी तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्ले किया था गालिब, गालिब की जिंदगी पर, जी और सर। वो एक स्कूल के बच्चों के साथ किया था। तो वो प्ले हो गया और बड़ी मुश्किल उर्दू थी और बच्चों ने सीख भी लिया। फिर उनके नाना दादा आए मेरे पास प्ले के बाद और वो रो रहे थे। वो कह रहे थे हम पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, हम उर्दू बैकग्राउंड से हैं, हमारी एजुकेशन उर्दू में हुई है, हमने अपने पोते पोतियों को उर्दू बहुत सिखाना चाहा लेकिन ये नहीं सीखे, लेकिन आज आपने जो इनके साथ कर दिया हमें यकीन ही नहीं आ रहा, हम अपने बचपन में चले गए। तो इसी तरीके से जैसे एक बच्चा था, उसको मैंने इब्राहिम जौक बनाया था। तो उसको एक डायलॉग दिया था कि जहां पनाह का हुक्म टालना मुनासिब तो नहीं, लेकिन तबीयत खासी नासाज है इसलिए मुआफी का ख्वास्तगार हूं। मैंने देखा रिहर्सल के वक्त वो बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है। फिर वो बास्केटबॉल खेल के आया, मैंने कहा कहाँ थे तुम? तो मुझसे कह रहा है कि तबीयत खासी नासाज थी, मुआफी का ख्वास्तगार हूं। मुझे हंसी आ गई कि मैंने देखो, मतलब मेरा गुस्सा काफूर हो गया कि अभी ये बास्केटबॉल खेल रहा था। तो जब कोई बच्चा इस किस्म की चीज करता है जिसका उस बैकग्राउंड से कतई कोई ताल्लुक नहीं है और वो कहता है कि हमने बहुत बड़ा सबक सीखा, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। फॉर जी जी। एग्जाम्पल, अगर मैं जब हम लोग श्री कृष्ण किया करते थे और संस्कृत के श्लोक, तो बच्चे कहते थे कि सर हम पता नहीं क्यों इस प्ले में मुझे श्लोक पढ़ने में बहुत मजा आता है, बट क्लासरूम में हम सिर्फ संस्कृत इसलिए पढ़ते हैं कि नंबर उसमें ज्यादा मिल जाते हैं। तो अच्छा।
तो ये सब बच्चे या कभी कभी टीचर्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ टीचर्स का होता है कि अगर उन्हें रोजी रोटी का मसला नहीं हुआ होता तो वो भी थिएटर में एक्टिंग करते या वो भी सिनेमा में एक्टिंग करते। जब आप उस टीचर को आप कह दीजिए कि मैम आप असिस्टेंट नहीं एसोसिएट डायरेक्टर हैं, ये वाला सीन आप प्लीज डायरेक्ट कीजिए, तो उनकी हम्म खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि मुझे आज एक सीन डायरेक्ट करने को मिला है। या कभी वंडरफुल। कभी जैसे एक जगह मैं वर्कशॉप लेने गया, बच्चों के साथ प्ले कर रहा था, तो एक फिजिक्स के टीचर आए, तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी नाटक लिखता हूँ, आप देख लीजिए। तो पहला रिएक्शन तो यही होता है, ये फिजिक्स के टीचर हैं, ये क्या नाटक लिखते होंगे। फिर उन्होंने वो नाटक मुझे दिखाया, तो मैंने कहा अरे इतनी खूबसूरत हिंदी में और इतना बेहतरीन नाटक आपने लिखा है। बोले सर अगर समस्या नहीं होती, माँ बाप ने साइंस बैकग्राउंड में डाल दिया, वरना तो मैं यही सब करता। तो और एक और किस्सा सुनाऊंगा अगर वक्त है नहीं, तो। प्लीज सर, प्लीज। तो मैंने फिर स्कूल को कन्विंस किया कि ये जो आपके फिजिक्स के टीचर हैं इनका नाटक किया जाए। फिर वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि सर क्योंकि मैं सिर्फ टीचर हूं, तो प्रिंसिपल साहब ने कभी भाव ही नहीं दिया, कभी सुना ही नहीं। तो मैंने स्कूल को कहा आपके टीचर ने इतना अच्छा नाटक लिखा है और हिंदी में, और क्लिष्ट हिंदी में, मजा आ गया पढ़ने में। तो ऐसे ही मैं वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, वहां वर्कशॉप लेने गया आईएएस ऑफिसर्स की, आई मीन वुड बी आईएएस ऑफिसर्स की। तो एक साहब रात के खाने में मेरे पास आए, कहने लगे कि सर मैं इसको करियर कैसे अपना सकता हूँ। मैंने कहा यार सवाल तो आप वो पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कर लीजिए, एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं आईएएस ऑफिसर हो जाता हूँ, आप थिएटर करने लगिए। तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई दिलचस्पी आईएएस आईएएस बनने में नहीं है, सामने जो लेडी बैठी हुई हैं इनसे मैं इश्क करता था। इनके पापा ने कहा कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, तुम भी अगर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लो तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। तो मैंने इनके चक्कर में सर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया है, पर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यही सब करना चाहता हूँ। तो खैर मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब आप जहाँ जाएंगे, जहाँ पोस्टिंग होगी, वहाँ गरीब बच्चों के साथ, वहाँ स्लम्स के बच्चों के साथ आप यही सब कीजिएगा, कविता पाठ कीजिएगा, नाटक कीजिएगा। तो अब वो एंड फिर उन्होंने प्ले जो किया, मतलब मैंने ऐसा एक्टर देखा नहीं है कभी। तो ये तो प्रतिभा किसी में भी हो सकती है, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं है तो भी बहुत आसानी से डेवलप की जा सकती है। बस एक दो घंटा, और ऐसा कहना मतलब नहीं कि आप सिर्फ आपको कविता पाठ करने में मजा आता है आप वो कीजिए, आपको स्टैंड अप कॉमेडी करने में मजा आता है आप वो कीजिए, आपको थिएटर करने में मजा आता है वो कीजिए, आपको सिनेमा करने में मजा, अब तो सिनेमा बहुत आसान हो गया है। अब तो हमारे आपके सबके पास फोन है, आप एक अपनी छोटी सी फिल्म बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को भेजूंगा, हमारा मेरा प्ले है टू गांधी जी विद स्पेलिंग मिस्टेक्स। Yes, sir. Please, you can share it, and I'll share it with the जी, वो participants. जी sir. वो आप चाहें तो अपने ही बच्चों के साथ करें, आप चाहें तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ करें, वो चाहें तो आप खुद ही करें। तो अब तो लेकिन लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आनी चाहिए। जी। कि फॉर एग्जाम्पल जब हम लिटरेचर पढ़ते थे, जब हम जासूसी दुनिया पढ़ते थे, या मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे, या मुश्ताक यूसुफी पढ़ते थे, या आर के लक्ष्मण का कार्टून देखते थे, तो हम ये थोड़ी सोचते थे कि हमें आर के लक्ष्मण बनना है। हमें तो वो कार्टून देख के मजा आ जाता था। तो आप भी अगर थिएटर एज स्ट्रेस बस्टर शुरू करना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल प्रोफेशनली मत कीजिए, ट्रायल एंड एरर, खूब सारी गलतियां कीजिए। सर, विद दैट वंडरफुल वंडरफुल एनेक्डोट एंड इतना खूबसूरती से आपने समझाया कि मुझे लगता है कि ये सेशन जो था बहुत ही स्ट्रेस बस्टिंग सेशन था। और आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स, अब मैं आपको बता दूं सर, हमारा जो पहला सेशन होता है वो 10:30 शुरू होता है, एंड वी कंटिन्यू द सेशंस टिल 5:30 in the evening, and all our participants
are actively involved, सवाल पूछते हैं, Till सुनते हैं, 5:30 जी. और उनका इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है. So this session was, I think, it was something very invigorating and very refreshing for us, in the sense that जैसा आपने कहा था कि it has to be an interactive session. So we tried our best and it was indeed an interactive session. और इतने अच्छे reactions आ रहे हैं participants के. Dr. Kalyani Rajan कह रही हैं engaging and delightful sessions. So I can say that we all participants here are delighted. सर, इससे पहले कि मैं आपका फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दूं, मैं चाहूंगी कि आप कोई छोटा सा डायलॉग या कोई ऐसा छोटा सा एक्ट हम लोग के लिए, मतलब एक मैसेज के साथ. आई मीन, यू आर द राइट पर्सन टू डिसाइड व्हाट. आई कैन ओनली पुट अ रिक्वेस्ट, so which we can reminisce and we can take it with us. It can be a takeaway for us as teachers or as human beings all. मेरे ख्याल से आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब पढ़ी होगी, क्योंकि वो सिलेबस में भी होती है. उसका एक पोर्शन कर दे रहा हूँ. जी सर, प्लीज, थैंक यू. As big brother, and just somehow related to academics also. Punjabi, sorry, Banarsi English. Good question, Samta. Very good question you have asked. Why I fail every year? I fail every year because of deep foundation. Did not understand. I will explain. See, if the foundation of a building will not be deep and deep and deep, the building will not be high. For example, Qutub Minar. By the way, seen Qutub Minar? जी हाँ, लेकिन चित्र में. भैया, how many times I have to tell you that you have to speak only English before me? Yes, but in photo, and Mr. Samta Prasad Pandey, I also know that you have never gone to Delhi to see Qutub Minar with your button-like eyes. Button is Hindi. Button is English. It came with Britishers. Before that, there was only Sui Dhaga. Do not take out the skin of the hair. I forgot what I was saying. Yes, Qutub Minar. And not only Qutub Minar. About the importance of deep foundation. Qutub Minar is not only on the earth. It is in the earth also. And Shriman as much in the earth as much on the earth. And that is why it is standing ज्यों का त्यों. English. As it is. And from when? From last 700 years. The manufacturers of Leaning Tower of Pisa did a mistake. They did not dig its foundation deep. And it was not made high. Not high, why? It tilted also. Will fall down in 2-3 months. By the way, where is the Leaning Tower of Pisa? Lucknow. Rome. One is in Lucknow, one is in Rome. It is only in Rome, Magge. थैंक यू सर, थैंक यू, दैट वाज वंडरफुल. एंड रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के. जयंती लाल जी कह रहे हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल लेक्चर. शैलजा जी कह रही है बहुत सुंदर सर. डॉक्टर अमित कुमार भगत जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल. डॉक्टर ममता आहूजा कह रही है वेरी नाइस सेशन. डॉक्टर सीमा शर्मा जी कह रही हैं बहुत ही बढ़िया सर, बिना किसी बनावटीपन के सहज भाव से आपका प्रेजेंटेशन. Very interesting session, Dr. Ruchika कह रही हैं. Dr. Kalyani Rajan, engaging and delightful session. I think, yes, Akash Upadhyay जी कह रहे हैं very fruitful session. Vikas Sharma sir कह रहे हैं nice session. Thanks, sir. संदीप शर्मा कह रहे हैं मिजाज हरा बना दिया आपने सर. So I think there has been an impact of your theatrical lecture and the very simple laws and the very simple
pointers that you shared from your experience. ये सर मैं आपको बताऊं सर कि जो जी कुछ चीजें आपने कही, बिकॉज सिंस आई हैव टू गिव यू अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स और आपका शुक्रिया अदा करना है, उससे पहले मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी, कुछ पॉइंटर्स देने चाहूंगी कि जैसे आपने लिटरेचर के पढ़ने के बारे में जोर दिया, उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि हम शेक्सपियर तो खैर, नो ऑफेंस टू शेक्सपियर, बट यू आल्सो मेंशन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू स्टडी आवर ओन लिटरेचर। प्रेमचंद के बारे में आपने कहा, गालिब के बारे में आपने, गालिब की पर्सनालिटी को कैसे आपने एनालाइज किया है एज अ थिएटर पर्सन व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ प्ले ऑन हिम। देन एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि theater is not something that can be taught. You have to, you have to take it as a trial and error method. And because I am a history teacher, so my takeaway from your lecture is that I'm going to try to make my lectures interesting with the theatrical tools that you have. You have mentioned very minute, small tools. जैसे मैं आपको बताऊं, मैं original sources जो है, बाबरनामा है, हुमायूंनामा है, एपिसोड्स ऑफ औरंगजेब में, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को उसमें से पढ़ के सुनाऊं। जैसे जैसे बच्चों को उसमें से ओरिजिनल जो सोर्सेज हैं उसमें से लेटर्स पढ़ के जी सुनाऊं। अब थोड़ा सा मैं आपके लेक्चर के बाद कोशिश करूंगी कि कुछ थिएट्रिकल टूल्स यूज करूं उसमें। सो सर, त्रिलोचन जेना जी ने लिखा है, एन आर्टिस्ट हैज मैग्नेटिक पर्सनालिटी टू ब्रिंग अटेंशन। थैंक यू सर। So these are the reactions that that we are getting from our participants. Now sir, सबसे पहले तो I want to thank you, and on behalf of all the participants here, we are now going to go for a break, and then we again have a lecture. मालिनी अवस्थी जी का लेक्चर है, उसके बाद वो फोक और स्ट्रेस बस्टिंग पे बात करेंगी. So it's going to be a wonderful day after your lecture, and then in the morning our principal sir spoke. So sir, on behalf of Atmaram Sanatan Dharm College in collaboration with Ramanujan College, on behalf of my प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, जिनका भी बहुत क्लोज एसोसिएशन है थिएटर के साथ. सर इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद थिएटर एंड ही सपोर्ट्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू थिएटर. And my IQAC in charge and convener, Professor Vinita Tuli, my entire team, and like I already mentioned, my tech support, Dr. Ravinder Pant. He is a faculty in the Department of Commerce, and every year we watch out for his performance in the Rangayan episode we have the theater festival. So there's Ravinder Pant. Thank you, Ravinder, for being such a good tech support. And above all our beautiful and wonderful participants here, sir. ये सारे teachers all over India से हैं, university के. Their active participation and their active sharing of views and questions is enigmatic. सब reactions आ रहे हैं sir, thumbs up आ रहा है, heart आ रहा है, celebration आ रहा है आपके lecture को लेकर. So thank you so much sir on that note. And I wish you all the very best, and I wish you more power to your work. Keep doing such good work. Thank you so much sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. नमस्कार sir.